عید قریب آتے ہی شہریوں نے شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ مہنگائی کی وجہ سے عید کی خریداری متاثر ہونے پر دکاندار پریشان ہیں۔ ملتان سے رپورٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق۔ عید قریب آتے ہی شہریوں نے بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا، لیکن مہنگائی کی وجہ سے عید کی خریداری متاثر ہو رہی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ شہری دکانوں پر آتے ہیں مگر قیمتیں سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ عید پر کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتے خریدنا ضروری ہیں، جبکہ مہنگائی اجازت نہیں دے رہی۔ خریداری کے لیے جو ہے یہاں پر کسٹمر آتے ہیں اور خریداری بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہے کہ یہاں پر ہمارے شاپ پر جو نا مہنگائی کی وجہ سے بہت سے لوگ جو نا کم آتے ہیں ہمارے پاس۔ جوتے بھی دیکھتے ہیں، شاپ پہ آ رہے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، مگر وہ بات نہیں ہے جو پچھلے سال تھی۔ اس سال میں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال 700 میں ملنے والے کھسے کی قیمت 1500 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ دیگر ڈیزائن کے جوتے 3 سے 4000 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ آج کل کے جو دور جا رہا ہے، اس مہنگائی کے دور میں مارکیٹوں میں جیسے کہ عید کی آمد ہے، ابھی وہ رش نہیں شروع ہوئے، اور کچھ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے پاس سکت بھی نہیں ہے، تو لوگ جوتے تو خریدنے ہیں لوگوں نے، تو دیکھیں آگے مزید کام امید ہے بہتر ہو جائے گا، لوگوں کا رجحان ہوگا۔ دکانداروں کا ماننا تھا کہ قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سہیرا طارق، روہی، ملتان۔ بارش آندھی کی پیش گوئی، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ مغربی ہوائیں 15 اپریل کو بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ 17 تا 18 اپریل کو جنوبی پنجاب، ڈی جی خان، راجن پور سمیت دیگر میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ آندھی، تیز ہواؤں اور ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ گندم کی فصل تیار ہے۔ پی ڈی ایم اے نے کسانوں کو بھی خبردار کر دیا ہے۔ شہری ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے حوالے سے۔ پنجاب میں سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کلب لیول پر کھیلوں کے مقابلے کرانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ، ڈویژن اور صوبائی سطح پر کھیلوں کے مقابلے جاری رہیں گے۔ 1 ماہ تک سپورٹس ایونٹس میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال، کبڈی کے مقابلے ہوں گے۔ پی آئی ٹی بی کے سائٹ پر کھلاڑیوں اور کلب کی آن لائن رجسٹریشن کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے جامع پلان طلب کر لیا ہے۔ نوجوانوں کو کھیل کے میدان میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ دیہات اور دور دراز علاقوں میں چھپے ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے گا، ایسا کہنا ہے محسن نقوی کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیتنے والی ٹیموں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ اور اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر صبح بھر میں آٹے کی سپلائی جاری ہے۔ ملتان میں انتظامیہ کی طرف سے آٹا پوائنٹس پر شہریوں کے لیے مثالی اقدامات کیے گئے ہیں۔ آج 40,521 تھیلے لائے گئے ہیں، جن میں سے 32,257 تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں سید زہیب بخاری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی خصوصی ہدایات پر ملتان میں مفت آٹے کی سپلائی جاری۔ انتظامیہ نے آٹا پوائنٹس پر شہریوں کے لیے مثالی اقدام کیے ہیں۔ شہری بہتر اقدام پر حکومت کے گن گاتے نظر آئے۔ سر مجھے تھیلے مل چکے 3 مکمل، مگر یہ جو یہاں پر وہ تھے نا، ہم تھے ڈسیبل، انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ جیسے ہم لوگوں کو ملے نا، جیسے یہ میری ماں کھڑی ہے، ان کے 3 تھیلے ہیں اب تک ان کو نہیں ملے۔ میں مہربانی کریں ان کو بھی ایسے دیں، ان کے بچے گھر بیٹھے ہیں بھوکے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے ان کے لیے مثالی اقدام کیے ہیں۔ اس پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سارے لوگوں نے اتنے میسج ہیں، اتنے اسدا ساکو ایک تھیلا نہیں ملا، 10 ٹبر سارے گھر کہیں نکاح نہیں ملے، ساکو میسج جو بغیر ساکو آٹا ملنا چاہیے۔ ملتان میں آٹا پوائنٹس پر 40,521 تھیلے لائے گئے، جن میں سے 32,557 تقسیم کر دیے گئے، جبکہ سسٹم میں فنی خرابی کی وجہ سے پوائنٹس کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ اور اب آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت کا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایک اور احسن اقدام سامنے آیا ہے، جس میں مفت آٹے کی تقسیم میں نااہل قرار دیے جانے والے افراد کو بھی اہل قرار دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آٹا پوائنٹس پر عوام کا جمع غفیر امڈ آیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں کوٹدو سے شفقت ملانہ کی یہ رپورٹ۔ مفت آٹا پوائنٹس پر شناختی کارڈ سکین کرانے والے افراد میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے نااہل کے سٹیٹس والے افراد کو بھی اہل کر کے 3 بیگ مہیا کر دیے گئے، جس کے باعث عوام پنجاب حکومت سے بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہے۔ فری آٹا پوائنٹس کو حکومت کی ہدایت کے مطابق 25 رمضان تک چلایا جائے گا۔ عوام بہت مطمئن ہے صوبائی حکومت سے اور گورنمنٹ پاکستان سے، کیونکہ بہت اچھا ریلیف مل رہا ہے، اور اچانک رات شروع ہو گیا۔ ہمارے بھی انتظامات اسسٹنٹ کمشنر صاحب اصغر اقبال لغاری صاحب کی ہدایت پر ہم چوکس کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیم بڑے احسن طریقے سے ڈیوٹی ادا کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے غریب گھرانوں کو 3 تھیلے آٹا کی فراہمی کسی نعمت سے کم نہیں۔ مفت آٹا کی تقسیم کا سن کر ہر کوئی فری آٹا پوائنٹس کا رخ کر رہا ہے۔ 3 تھیلے ملے نا،
वजीर आला पंजाब तो मौसम नकवी तो ऐसे शुक्रिया अदा करेंगे से तरह मिलन सको मौसम नकवी ना से शुक्रिया अदा करे सो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जो 3 थैले दिए गए हैं, हम वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं इसकी तरफ से। पंजाब हुकूमत की तरफ से 3 थैले आटा मिलने पर अवाम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की काविशों को सराहने के साथ साथ उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मिलाना, रूही, कोट अज़ू। डिप्टी कमिश्नर रहीमियर खान शकील अहमद भट्टी का फ्री आटा सेंटर का दौरा, आटे की तकसीम और इंतजामात का जायजा लिया। कहा 22,30,000 थैले तकसीम करके 97% हलफ मुकर्रर कर लिया गया है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखेंगे। डिप्टी कमिश्नर रहीमियर खान शकील अहमद भट्टी ने ईदगाह में कायम फ्री आटा सेंटर का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया और शहरियों के मसाइल सुने। इस मौका पर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की खसूसी हिदायत पर शहरियों को रमजानुल मुबारक में मुफ्त आटा दिया जा रहा है। 22,30,000 थैले तकसीम करके 97% हदफ मुकम्मल कर लिया है। जल्द 100% हदफ भी पूरा हो जाएगा। अभी तक हम अपने टारगेट का 97% आटा तकसीम कर चुके हैं जी। 22,30,000 बैग्स हमने तकसीम किए हैं अपने पूरे ज़िले में, और जो हमारे ज़िले में डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है आपने देख लिया, बड़ा स्मूथली जारी है। और अभी इस स्कीम के 3 दिन बाकी हैं, ये 25 रमज़ान तक हमारी स्कीम जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का मजीद कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए 25वें रोजे तक आटे की तकसीम जारी रहेगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमियर खान। वेलकम बैक। मरकजी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की रहीमियर खान आमद। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से खुसूसी मुलाकातें की। सिराजुल हक कहते हैं कि जमात इस्लामी इलेक्शन में जीत के लिए तैयार हैं। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। जमात इस्लामी माह रमज़ान के दौरान भी सियासी मैदान में मुतहर्रिक हो गई। मरकजी रहनुमा सिराजुल हक ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। उन्होंने रहीमियर खान जिला के पार्टी उम्मीदवारान, रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकातें की और खसूसी खिताब किया। सिराजुल हक का इस मौका पर रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, तमाम सियासी जमातों को अवाम जान चुकी है। नाअहल और करप्ट हुक्मरानों ने मुल्क का दिवालिया कर दिया। जमात इस्लामी ही अवाम की हकीकी फलाही सियासी जमात है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार पंजाब के हर हलके से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। रहीमियर खान में नहीं, पूरे मुल्क में हम इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं और रहीमियर खान के हर हलके पर इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और अब वक्त आया है कि लोग एक हकीकी तब्दीली के लिए जमात इस्लामी को वोट दे, इसलिए कि तमाम लोग एक्सपोज हो गए हैं और जितने लोग इस वक्त हुकूमत में हैं या इससे पहले थे, उनकी कारकर्दगी लोगों ने देख ली। मरकजी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि इलेक्शन में जीत कर जमात इस्लामी इक़्तिदार में आएगी। मुल्क में तरक्की का पहिया तेजी से चलेगा। हम अवाम का म्यार जिंदगी बुलंद करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमियर खान। काश्तकारों की मेहनत रंग ले आई। मुल्तान में गंदम की कटाई का आगाज हो गया। गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बारिश और याराबारी के बायस सिट्टे गिरने की वजह से काश्तकार दरांती से कटाई कर रहे हैं। खेतों में गंदम की कटाई करते काश्तकार बेहतर पैदावार के लिए पुरुमीद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान जिले में गंदम की कटाई का आगाज हो गया। गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश और यालाबारी की वजह से सिट्टे गिर गए थे, जिसके बायस काश्तकार दरांती से कटाई कर रहे हैं। सिट्टे गिरने के बायस खेतों में कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। काश्तकार कहते हैं कि फसल को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन उम्मीद है पैदावार बेहतर रहेगी। मौसमी शिद्दत की वजह से फी एकड़ पैदावार में 10 मन तक कमी हो सकती है। कटाई शुरू हो गई है। ये गंदम की पैदावार में मतलब कमी तो आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये कुछ ना कुछ बच गई है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि 40-45 मन इस गंदम निकल आएगी। माहिरीन ज़राअत ने हिदायत जारी की है कि काश्तकार उस वक्त कटाई करें जब मौसम साफ और दर्जा हरारत बढ़ गया हो। दरांती से कटाई के बाद ढेरियां भी छोटी बनाई जाएं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो इस दफ़ा गंदम का टारगेट है वो हम ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो मैं काश्तकार को ये कहूँगा कि अब जो इसकी बर्दाश्त है उसमें कुछ एहतियातों की बहुत ज़रूरत है। खासतौर पर जो गंदम लेटी हुई है उसको जो काश्तकार हैं वो बिल्कुल कंबाइन हार्वेस्टर के साथ बर्दाश्त ना करें। उसको दरांती के साथ काट के जो है वो छोटी छोटी जो उसकी भरियां हैं वो रखें और सीटों का ऊपर को रखें। किसान पर उम्मीद है कि हुकूमत उनसे गंदम का एक एक दाना खरीदेगी ताकि उनके नुकसानात का कुछ तो अजाला हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मलिक नाहिद दराला की मुल्तान में इफ्तार पार्टी। साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत हुई। शरीक नायब सदर MDA हाउसिंग सोसाइटी मलिक नवीद दराला का कहना था, इफ्तार पार्टी का मकसद लोगों को एक ही जगह इकट्ठा करना है। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक नाहिद धराला की जानिब से मुल्तान में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। दराला हाउस पे हमेशा हर साल की तरह एक पार्टी इफ्तार पार्टी का इंतमाम होता है, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियत जिसमें मखदूम सैयद अली हैदर गिलानी साहब ने भी शिरकत की, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हमारी सोसाइटी के चेयरमैन हसनैन अब्बास खेड़ा, मेरे भाई मलिक नवीद अब्बास धराला, वाइस प्रेसिडेंट मुनीर आसी साहब, इस तरह हमारा पूरा ग्रुप ने शिरकत की। ये एक बस मिलने का बहाना होता है और सवाब अल्लाह ताला इसको कबूल मकबूल फरमाए। शरीक नायब सदर MDA हाउसिंग सोसाइटी मलिक नवीद धराला का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इफ्तार पार्टी का मकसद लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है। हर साल ही हम इफ्तार पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं, सब दोस्तों को जो है ना इनवाइट करते हैं। तो जो है ना ये रमज़ान शरीफ का महीना बहुत ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाला है। इसमें हर इंसान कोशिश करता है अपने तरीके से कि कुछ ना कुछ कर सके। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी, उम्मीदवार PP 214 मलिक रिजवान हांस, मारूफ कारोबारी शख्सियत कारी मोहम्मद शरीफ, मलिक इकराम भुट्टा समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतें समेटने में मसरूफ है। बावलनगर में सहरी और इफ्तारी के लिए 78 पॉइंट्स कायम किए गए। रोज़ाना हज़ारों अफराद सहरी और इफ्तारी करते हैं, जबकि जेल, हॉस्टल्स और मुस्तहिक अफराद के घरों में भी खाना पहुँचाया जाता है। कासिम अली शेख की रिपोर्ट में देखेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग रमजानुल मुबारक की बरकतें समेटने में मसरूफ। कमर्शियल कॉलेज चौक समेत मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों मुस्तहिक अफराद के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम। इस मौका पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा भी मौजूद होते हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो खिदमत की सियासत पे यकीन रखती है, रोजाना की बुनियाद पे 73 पॉइंट्स पे हजारों लोगों को सहरी और इफ्तारी करवाई जाती है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा हाफिज अमीर हमजा का कहना था कि हम अवाम की खिदमत को ही अपनी सियासत समझते हैं। मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। महंगाई के इस दौर के अंदर गरीब और सफेद तबका के लिए मैं समझता हूँ ये किसी नेमत से कम नहीं। मैं इसमें कर दावत दूंगा अपने साहबी हैसियत लोगों को कि वो आएँ और विजिट करें और इन गरीब गुरबा और मसाकीन के लिए दिल खोल कर वो इस सिस्टम के अंदर बेकारा तौर पर शामिल हो जाए। शहरियों का कहना था कि रमजानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, जबकि आम दिनों में दोपहर का खाना दिया जाता है। इन भाइयों को बहुत शुक्रिया, हम जैसे गरीब बंदों को ये रोज इफ्तारी भी करवा रहे हैं, सहरी भी करवा रहे हैं। माशाल्लाह कहाँ कहाँ से आदमी आए हुए हैं यहाँ पर, और देखें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं यहाँ पर कितना रश है और कोई बंदा भी खाली नहीं जाता यहाँ से। शहरियों का मजीद कहना था कि सहरी और इफ्तारी का एहतमाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का ऐसा इकदाम है, यहाँ से रोजाना सैकड़ों अफराद खाना खाते हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम दूसरी सियासी जमातों के लिए भी एक मिसाल है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही, भावलनगर। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नेकियां समेटने का सिलसिला जारी। खानेवाल में मुखैर हजरात की तरफ से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद अहवाल जानने के लिए देखते हैं मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में मुखैर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। खानेवाल में मारूफ सियासी शख्सियत मियाँ जावेद अराई की जानिब से हजारों खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मियाँ जावेद अराई का कहना था कि अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने से दिली इत्मीनान व सुकून मिलता है। 3-4 साल से हम राशन तकसीम कर रहे हैं, पहले हम पैसे देते थे, तो जी अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं जी, और अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं। और अल्लाह ताला आप सब से दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसमें अजर दे और हमारी आकबत ठीक करे। हम अपनी आकबत के लिए, अपनी अगली ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, और अपने बहन भाइयों के लिए या बेटियों के लिए जो बेचारों का हाल नहीं कम है, यानी उनके इन सोर्स ऑफ इनकम कम है, और सोर्स ऑफ इनकम को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम ये काविश कर रहे हैं। राशन तकसीम करने का अमल मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल किया गया। मियाँ जावेद अराई ने दीगर मुखैर हज़रात से अपील की है कि वो भी मुस्तहिक अफराद की बढ़ चढ़ कर मदद करें। ये बाद लोग कहते हैं जी ये शो ऑफ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हम इसलिए बताते हैं सारा कुछ कि हम दे रहे हैं, आप लोग भी दें। अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है, तो उनमें से गरीबों का भी हक है। ये इसका पीछे जो पीछे एक सबक है बाकी लोगों के लिए, यही है कि आप लोग भी करें
इससे आपका माल बढ़ता है, कम नहीं होता। राशन की तकसीम पर शहरियों का कहना था मुखय्यर हजरात की तरफ से राशन की तकसीम अहसन इकदाम है। और लोगों को भी चाहिए कि जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनके लिए राशन भी तकसीम करें। और आगे ईद आ रही है और यतीम बच्चे बच्चियां, उनके लिए कपड़ों का भी इंतज़ाम किया जाए। खानेवाल में मियाँ जावेद आराइन साहब जो ये अमल अपना जारी किए हुए हैं, लोगों में राशन तकसीम करने का, उन लोगों की खिदमत करने का, और रमज़ानुल मुबारक है, बड़ा ये एक सवाब का काम है। और मैं ये समझता हूँ कि जो खानेवाल के दीगर मुखिर हजरात हैं, उन्हें भी जो है इस अमल में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। दीन इस्लाम गरीब, यतीम और मस्कीनों की मदद करने की तरगीब देता है। खिदमत इंसानियत से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। बात करेंगे ईद की तैयारियों की। शहरी रवायती लिबास के साथ पेशावरी चप्पल खरीदने अहमदपुरी गेट पहुंच गए। नए डिजाइन के लिए दुकानदारों से जोड़ तोड़ किया। ताहिर जोई रिपोर्ट करेंगे। जनूबी पंजाब की तरह बहावलपुर में भी ईद उल फितर की तैयारियां जारी हैं। शहरी पेशावरी चप्पल खरीदने अहमदपुरी गेट पहुंच गए। चप्पलों के नए डिजाइन पहनकर दुकानदारों से कीमत भी कम कराते रहे। ज्यादातर ये कप्तान चप्पल भी है, नरोजी भी है, 400 चलती है। ये 3 चीजें ज्यादा चलती है। ईद के दिनों में इसकी मांग में कितना इजाफा होता है? लोग ईद में ज्यादा दिनों में खरीदते हैं या पहले ज्यादा खरीदते हैं? आगे पीछे तो बहुत कम होती है। ईद पे जो है ना हर आदमी लेता है, महंगी हो भाव सस्ती हो, लेता तो है। ईद करीब आते ही पेशावरी सैंडल्स की मांग बढ़ जाती है, जबकि अहमदपुरी गेट चप्पल वैरायटी का सबसे बड़ा मरकज है। शहरियों का कहना था कि पेशावरी सैंडल के बगैर कौमी लिबास की चमक दमक अधूरी रहती है। रिवायती चप्पल ईद की खुशियां बढ़ाती है और गर्मियों में आरामदा भी है। तो बहावलपुर शहर है, गर्मी एक ज़्यादा होती है और पेशावरी चप्पल यानी कि इस लिहाज से ज़्यादा चलती है, क्योंकि गर्मी की तो इंतहा होती है, ये 50 तक चली जाती है, जिससे जनाब इसमें कंफर्ट बंदा यानी कि ईजी रहता है। शहरियों का मजीद कहना था कि ब्रांड्स के मुकाबले में रवायती चप्पल सस्ती भी है और पायदार भी है। ब्रांड से 5000 जबकि यहाँ से 2000 तक दस्तयाब है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। मेहंदी की मांग बढ़ गई, कारखानों में तेजी से काम शुरू हो गया। आखिरी अशरे में मेहंदी के ऑर्डर्स भी दुगना हो गए। एक दिन में 2000 डिब्बे बनाए जाने लगे। अलिश बासिफ की रिपोर्ट में देखेंगे। मेहंदी के बगैर खवातीन की ईद अधूरी होती है। मेहंदी की फैक्ट्रियों में चांद रात तक दुकानदारों और ब्यूटी पार्लर्स को ऑर्डर पहुंचाने के लिए तेजी से काम जारी है। एक दिन में 2000 तक डब्बे तैयार किए जाने लगे। मेहंदी के डब्बे मुल्तान के साथ साथ दीगर शहरों में भी भेजे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर तो बहुत आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, माल हमारे जो है ना ऑर्डर भी बढ़ते जा रहे हैं। लड़के बैठे हैं, सुबह शाम काम कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा जो है ना हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। माल भी माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है, मार्केटों में आउट साइड पे भी जा रहे हैं, दूसरे शहरों में भी, यहाँ भी चल रहा है। मेहंदी का घोल कर मशीन की मदद से मिक्स किया जाता है, फिर कोन में मशीन की मदद से मेहंदी डाली जाती है, जबकि पैकिंग भी नफासत से की जाती है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी। जो चीज़ 5 की थी वो 10 की हो गई है। केमिकल इतना महंगा है। ये जो जहाँ 10 लड़के थे वहाँ हमने आज 7 लड़के बिछाए हुए हैं, तो इस लिहाज से जो हो रहा है वो चल रहा है बस। लेकिन रुझान जो है ना वो थोड़ा सा कम हो चुका है महंगाई की वजह से। कारखाने के मालिक अजीम शाद का कहना था कि आखिरी अशरे में ऑर्डर ज्यादा बुक होते हैं। आजकल डबल शिफ्ट में काम जारी है। हर कोई मेहंदी की मांग इन दिनों बढ़ जाती है। दुकानों पे वक्त पे मेहंदी पहुंचाने के लिए मुल्तान के कारखानों में मेहंदी बनाने का काम तेजी से जारी है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहरियों ने नए कपड़ों के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मर्द ईद के लिए कुर्ता शलवार, जबकि खवातीन फैंसी लोन के सूट खरीदने में मसरूफ है। ओन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर है मुल्तान कैंट बाजार के, जहां ईद करीब आते ही मुल्तानियों ने नए कपड़े खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि ईद पर खूबसूरत कपड़े पहनकर प्यारे लगने का मौका मिलता है, इसलिए अपने और घर वालों के लिए ईद की शॉपिंग करने आए हैं। इस जो है वो कंपटीशन के दौर में और महंगाई के दौर में मतलब मुझे ये रिटेल आउटलेट ऐसा लगता है कि जहाँ पे मुझे सब प्राइस रेंज जो है ना अवेलेबल है। मतलब 950 से लेकर आप 50,000 तक जितने कपड़े चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। ताजिरों का कहना था कि हर साल की तरह रवां साल भी मार्केट में नया फैशन लेकर आए हैं। महंगाई के इस दौर में ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो ये 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर चली गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे साल पहले 1050 का सूट बेच रहे थे मर्दाना इकोनॉमिकल,
اور 1750 کا ہم خواتین کا بیچ رہے تھے. ہمارا آج بھی وہی ریٹ ہے, ہم انہی ریٹوں میں چیزیں بیچ رہے ہیں. مرد حضرات عید کے لیے کرتا شلوار جبکہ خواتین فینسی لان سوٹ خریدنے میں مصروف ہیں. کیمرہ مین محمد عرفان اسلم کے ساتھ اون عباس, روہی, ملتان. ماہ سیام کی آخری عشرے کی تیسری سحری کرنے کے لیے ملتان کے باسیوں نے لسی پوائنٹس کا رخ کر لیا. شہری کو کہنا تھا کہ لسی پیے بغیر سحری کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے. مزید جانتے ہیں اون عباس سے. جی بالکل, ماہ رمضان کی سحری کرنے کے بعد شہری لسی پوائنٹس کا رخ کر لیتے ہیں تاکہ جو روزہ ہوتا ہے اس میں جو پیاس کی شدت ہوتی ہے اس میں کمی محسوس کی جا سکے. شہری موجود ہیں جو کہ لسی لینے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں. بتائیے گا کہ سحری کرنے کے بعد لسی پینا ضروری ہوتا ہے کیا؟ جی بہت ضروری ہے, بہت اچھا ہوتا ہے لسی ماشاءاللہ. سحری کے بعد آپ پیے نا تو اپنا روزہ وغیرہ میں جو شدت محسوس ہوتی ہے انشاءاللہ ان کے پینے سے ختم ہو جاتی ہے. باقی حوصلہ وغیرہ انشاءاللہ بہت اچھی, آپ ٹیسٹ کریں دو بھائیوں کا, پرانے کسٹمر ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا ذائقہ ہے ان کا. جی بالکل, شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ لسی پی کر جو روزے کی شدت ہے اس میں کمی محسوس ہوتی ہے. اور شہری بھی موجود ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے لسی کے حوالے سے؟ کیونکہ لسی پینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ روزے کی شدت, جو پیاس کی شدت ہوتی ہے اس میں کمی محسوس ہوتی ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل سچ ہے. یہ ہم روزانہ ہی آتے ہیں بھائی کے پاس, حاجی صاحب کے پاس. ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں تو لسی تو پی کے جاتے ہیں یہاں سے, ان کے پاس یہ لسی لازمی پی کے جاتے ہیں. شہری کے بعد ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں. بتائیے گا کہ لسی جس طرح سے آپ بنا رہے ہیں عوام بھی بڑی تعریف کر رہی ہے, تو یہ بتائیے گا کہ لسی کتنی ضروری سمجھتے ہیں شہری کے بعد پینا؟ بہت اچھا سمجھتے ہیں, اور یہ ٹھنڈی ہوتی ہے ماشاءاللہ, کھانے پینے میں شام تک روزہ نہیں لگتا. اور نیاری پائی چنے اور مغز بھی ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ لسی ہو گئی, میٹھی لسی ہو گئی, ہر چیز بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے, اور یہ چیز روزے کو محسوس نہیں ہونے دیتی. تو ایک جو گلاس ہوتا ہے لسی کا کتنے میں فروخت کر رہے ہیں؟ ہم 30 روپے میں کر رہے ہیں ایک فروخت. 30 روپے؟ ہاں جی. جی بالکل, یہاں پر دکانداروں کا یہی کہنا تھا کہ 30 روپے میں ایک لسی کا گلاس فروخت کر رہے ہیں, جو کہ شہری یہاں پر آئے ہوئے ہیں, خود بھی پی رہے ہیں, گھر والوں کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں. اور شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ جو لسی ہوتی ہے وہ پیتے ہیں سحری کرنے کے بعد, تاکہ لسی پینے سے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا بھی محسوس ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو روزہ ہے اس کی پیاس کی شدت میں بھی کمی ہوتی ہے. جی اون عباس, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.